के पक्ष में हाँ लोग के प्रस्ताव स्वीकृत हो, विधेयक पारित हुआ। मैं लिस्टेड शून्यकाल चला रहा हूं, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं बोलूंगा। माइक वाले 1 मिनट में ही बंद कर देंगे, अपनी बात को 1 मिनट में समाप्त कर दें। एडवोकेट डीन कुरियाकोस। Sir, the declaration of ecologically sensitive areas and ecologically sensitive zones are creating or adversely affecting the livelihood of the farmer community every time, sir. Sir, our state governments are including the people inhabitant areas to ecologically sensitive zones. Very recently, Kerala government is doing that. In my constituency, the villages like Kanyikuri, Idukki and Kumali, Kutambura, more than 20 villages have been included in ecologically sensitive zones. It should be recorrected. It should be avoided by a physical verification. That is my first demand. My second demand is, it is regarding with the ESA declaration. Sir, it is the time for the final notifications. The process had been started in 2014 and the first draft notification came out on 2014. 9,993.7 square kilometers is the ESA extent in Kerala. It excluded the people inhabitant areas, but subsequently 4 other draft notifications came out, but the final notification is delaying. If the final notification is delaying unnecessarily, sir, the Supreme Court may intervene in these cases, specifically whatever happened in buffer zones cases. If it is coming and it is adversely affecting the livelihood of people, we can't do nothing. So that's why my demand, I urge upon the Forest Ministry here, we should have a final notification by excluding the people inhabitant area. Government of India already appointed a committee here. That committee is in functioning, but the final notification should come out by excluding the people inhabitant area in the case of ESA. That is my demand. Thank you, sir. Dr. V. Kalanidhi. Very much, sir. There are more than 1 lakh Sri Lankan Tamil refugees in the state of Tamil Nadu, sir. Sir, the Citizenship Amendment Act, which was brought in, has been very unjust to these people because it restricts citizenship only to people from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, and the total numbers will be only 2,000. Whereas here we are talking about 1 lakh people who from 1983, several of them from 1983 during the Black July, when several thousands of the Tamils were killed, they have displaced forcefully where they had to run for fear of loss of limb or life. And after coming here for 40 years, these people now, they have families, they have children, and even their children are not being provided with citizenship. And because of that, those children are deprived of even basic education. They cannot become doctors. Certain special educational provisions are not provided for them, sir. So I urge upon this government to ensure that the amendment to be brought into the Citizenship Amendment Act to include the Sri Lankan Tamils so that they can have a peaceful life over here, sir. Thank you very much. श्री रामदास तड़स। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सदन के माध्यम से माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र के सभी 23 आकाशवाणी केंद्र द्वारा प्राप्त 5:55 से रात को 11:20 तक मराठी भाषा के अंतर्गत तीनों प्रसारण सभाएं शुरू थी, किंतु 1 जुलाई 2022 के प्रसारण भारती की ओर से दिए गए निर्देश के तहत मराठी भाषा का स्थानीय प्रसारण सिर्फ 5 घंटों तक सीमित कर दिया है। प्रसार भारती द्वारा स्थानिक भाषा में की गई कपात केवल महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए मर्यादित है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कर्नाटक और गुजरात के प्रसारण हेतु कोई बदलाव नहीं की गई है, जबकि महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में रहने वाले मराठी भाषा के अधिकांश लोग हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। महोदय, आपसे निवेदन है कि पूर्व की तरह सभी 23 आकाशवाणी केंद्र द्वारा 5:55 से रात 11:20 तक मराठी भाषा के अंतर्गत तीनों प्रसारण सभा शुरू करने की कृपा करें। गोपाल ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राज्य बिहार की उस जहरीली शराब कांड की दर्दनाक और खौफनाक घटना की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिसने सैकड़ों गरीब परिवार को अनाथ कर दिया और वहां के मुख्यमंत्री और उसका पूरा प्रशासन मौत के आंकड़ों को छिपाने में व्यस्त है।
अध्यक्ष महोदय, ऐसी राज्य सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। रविंद्र महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जहरीली शराब कांड में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार करते हुए कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा, बहुत ही शर्मनाक बयान है। महोदय, हम अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करता हूं कि एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर इसका जांच भारत सरकार करावे और सभी मृतक परिवार को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की जो लागत है वो लागत आज के महंगाई के दौर में बहुत कम है और उस लागत में आज आवास बनाना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको वर्तमान समय में बताता हूं कि दैनिक मजदूरी प्रति मजदूर 400 से 500 रुपया है। बालू, मोरंग, सरिया, सीमेंट महंगा है। 12,000 रुपये सरकारी रेट है। ईंट का 18,000 से 20,000 रुपये में सरकार में मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का 1,20,000 से बढ़ा करके इसको 2.5 लाख रुपया किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर एक सीमावर्ती जिला है। इस जिले को हवाई मार्ग से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। देश और प्रदेश की राजधानी यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री गंगानगर में लालगढ़ हवाई पट्टी मौजूद है, जिसको पूर्व में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हवाई पट्टी मानक स्तर पर नहीं होने के कारण इसको बंद कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट का बहुत बड़ा अधिक महत्व है। यहाँ पूर्व निर्मित हवाई पट्टी 1200 मीटर की है, जिसको बढ़ा के 2500 किलोमीटर करने के लिए और लगभग 60 फीट चौड़ी करने के लिए अति आवश्यकता है। मैं अन्य संसाधनों की स्थापित करने की भी जरूरत है। अतः आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार ने वर्तमान में गाजियाबाद के निकट हिंडन में एक उड़ान योजना में MOU किया है, उसको नहीं करके आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर को हवाई मार्ग जोड़ने, एयरपोर्ट पर तकनीकी सुविधाएं, हवाई पट्टी और मानक मापदंडों को ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली स्थापित करते हुए जल्द से जल्द हवाई क्षेत्र को जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक महादेव नेते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील में मुरपार खान WCL जनवरी 2003 से स्थित है और ये ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नामित कोर और बफर जोन के बाहर आता है तथा खदान में पहले से ही पर्यावरण और वन की मंजूरी MOEF और CC से पूरी तरह सुरक्षित है। मैं सदन को ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि TATR के बफर जोन के आसपास इको सेंसिटिव जोन के संबंध में MOEF एंड CC भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11/9/2019 को जारी करने के साथ ये खान ECZ के अंदर आ गई है। उपयुक्त अधिसूचना खंड 4.1 के अनुसार सभी नए और मौजूदा खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से ECZ के अंदर प्रतिबंध किया गया है। गुरुमूर्ति। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। हाँ बताएं। अनुरोध है कि अतः ऐसी स्थिति में मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की मुरपार खदान में भूमिगत खनन कार्य जारी रखने के लिए ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव के संबंध में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11/9/2019 के कार्यान्वयन में छूट दिए जाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। श्रीमती चिंता अनुराधा सर। हाँ, M गुरुमूर्ति। ओके, सॉरी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, the roadmap for development of cruise tourism has been made jointly by Ministry of Tourism and Ministry of Shipping. Projected passenger growth from 0.2 million in 2016 to 4 million in 2041, sir. Creating 2,50,000 jobs.
Sir, there is a need to make cruise tourism more competitive, improve the infrastructure, development and promotion of tourist destination and projects, sir. Sir, in my Tirupati parliamentary constituency, Duggarajpatnam area had lot of potential and play major role in development cruise tourism in India, sir. Need some enhancements Duggarajpatnam, such as developing appropriate infrastructure for handling cruise vessels and facilitating ease of movement of passengers, sir. Adding Duggarajpatnam area in cruise line destination will enable tourists for an unique experience, memorable experience in Tirupati district, sir. I request through you, sir, to the Honorable Minister of Tourism for developing infrastructure facilities for promotion of cruise tourism at Duggarajpatnam port, sir. Thank you, sir. 1 मिनट, सबको 1 मिनट है. श्रीमती चिंता अनुराधा. Sir, the gross enrollment ratio in higher education went up to 27.1% in 2019-20 from 26.3% in 2018-19, as per the All India Survey of Higher Education 2019-20, sir. But the GER of SC/ST remains much lower than the national GER, despite reservations in public institutions. Further, between 2016 to 2020, 60% of students belonging to SC/ST communities dropouts are from IITs, NITs and IISCRs, among other centrally funded technical institutions, sir. As per government estimates, over 63% of undergraduate dropouts at top 7 IITs in the last 5 years are from reserved categories, with almost 40% being from SC/ST communities. Even the proportion of SC/ST dropouts is very high compared to their admissions to the institutes. This suggests that those who drop out are disproportionately affected in certain aspects and may experience increased pressure and discrimination at these institutes. Sir, through you, I would request the Ministry of Education to take requisite measures to rectify such disproportionate trends in higher education among reserved category students. Sir. Thank you, sir. श्री भागीरथ चौधरी जी. अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में कृष्णगढ़ की जो मंडी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, विश्वविख्यात मंडी है, और आपको भी अध्यक्ष जी जानकारी है. वहाँ मार्बल और ग्रेनाइट की सबसे बड़ी वर्ल्ड में जो मंडी है, रेलवे का एक कंटेनर डिपो भी स्थापित है, जहाँ पर मार्बल ग्रेनाइट उत्पाद का गुजरात के कांडला और मुंद्रा बंदराज से प्रतिदिन कई देशों से लगभग 40 से 50 कंटेनर्स का आयात निर्यात कृष्णगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की महती आवश्यकता है. और यहाँ के निर्यातकों और आयातकों को मजबूरीवश कस्टम क्लियरेंस के लिए या तो जयपुर जाना पड़ता है, अन्यथा उक्त बंदरगाहों पर जाना पड़ता है, जिससे काफी असुविधा है. विलंब अनावश्यक आर्थिक भार का वहन करना पड़ रहा है. इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, आपके मार्फत मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कृष्णगढ़ अजमेर से गत वर्ष दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर DFCC योजना के तहत न्यू कृष्णगढ़ रेलवे स्टेशन का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय जी, कृष्णगढ़ अजमेर में एक नवीन कस्टम क्लियरेंस कार्यालय चालू बजट सत्र 2022-23 में खुलवानी. धन्यवाद. राय जी. Sir, there is a growing conflict between the government, that is the executive, and the higher judiciary. This has been triggered by the law minister's sharp criticism of the collegial system of appointment of judges. Sir, the law minister's statements are disturbing and inappropriate because they relate to the way the court should function. He has suggested that judges should not have too many vacations. He has said this because he doesn't have any idea of the workload and pressures judges undergo, which also impact their health. The law minister also said SC should not hear bail pleas and frivolous PILs. Not to hear bail pleas will be taking away Article 21 fundamental right. Sir, just one second. आप विषय रख दो ना आपका, उनका स्टेटमेंट मत विषय रख दिया. सीरियस एक ही मिनट में बोलूंगा. Sir, and if they take away the PIL facility, it will be taking away a facility that was given by Justice P.N. Bhagavati, which gives justice to common people. Sir, के माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि वहां अतिशीघ्र एक पुल का निर्माण कर दिया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा
हो सके। धन्यवाद। श्री बदरुद्दीन अजमल जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ इस वक्त मैं आसाम से आता हूं और हमारे इलाके में सरकार की तरफ से रोजाना इवेक्शन चल रहा है सर। और इस सर्दी में बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ के पहले से कोई नोटिस नहीं देते हैं। उसके बाद उन लोगों को अब सर्दी में मैंने बार बार उस दिन भी 1 हफ्ता पहले पार्लियामेंट में उठाया था कि कम से कम सर्दियों में ना किया जाए। तो इस तरीके से अभी पूरे आसाम में तकरीबन 5000 फैमिलियों को अब तक इवेक्शन करके छोड़ दिया गया। वो जहाँ जाए, जहाँ रहे, नदियों के पास रहे। सबसे बड़ा मसला हमारे आसाम में ये आता है कि हर साल फ्लड आता है सर, आपको मालूम है, और इरोशन होता है, तो ये लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इनको जो है ये कह के कि ये बांग्लादेशी है, तो ये तो पकड़ना पहले। ये हमारे यहाँ जो है सर धुबड़ी, लामडिंग, पोरपेटा, करीमगंज, सोनीपत, इस सब जगह में इंक्रोचमेंट का मामला चल रहा है। इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, सर्दियों के लिए कम से कम रोक दिया जाए। उसके बाद कोई गैर कानूनी है तो उनके साथ जो सरकार करना चाहे, हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इंक्रोचमेंट सिर्फ एक कम्युनिटी को देख के किया जा रहा है। 5000 फैमिली में 2 फैमिली भी नहीं बता सकते कि दूसरे किसी कम्युनिटी का क्या। ये बंद करना चाहिए। श्रीमती बहुत बहुत शुक्रिया। अपराजिता सारंगी। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है, यह प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है। करीबन 22% से अधिक लोक संख्या आदिवासी समुदाय की है। और इसी परिप्रेक्ष्य में छोटे छोटे 3 निवेदन हैं। 3 जनजातियों के विषय में मेरी प्रार्थना है। प्रथम, सौरा, सबरा और सहरा एक जनजाति है जो अधिसूचित जनजाति की केंद्रीय सरकार की तालिका में 59 स्थान पर मेंशन्ड है, उसकी जगह है। सर, 2011 जनगणना के अनुसार यह जो समुदाय है, जनजाति समुदाय, इसकी संख्या 5,34,751 है। सर, इसी संदर्भ में कहना है कि सौरा, सरा, जो सौरा, सवरा और सहरा के पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं, उन्हें भी ये 59 रैंक में 59 जगह पर 59 सीरियल नंबर में क्रम संख्या में रखा जाए। और सर, इसके साथ साथ धुरवा जनजाति समुदाय और कंध कुमार जनजाति समुदाय के लिए भी अनुरोध करूंगी कि यह केंद्रीय तालिका में अंतर्भुक्त किया जाए। सिमरत सिंह। धन्यवाद। सिमरत सिंह मान। Thank you, Mr. Speaker, sir. I want to bring to the notice of the House and the Union government that Sikh prisoners are languishing in jail for more than 25 years. Though the convicts of Rajiv Gandhi case and Bibi Banu's case have been released, these prisoners are Devinder Pal Singh Pullar. He is in jail for 28 years. Gurdeep Singh Khera is in jail for 32 years. Balwant Singh is in jail for 27 years. Jagtar Singh Habada is in jail for 27 years. Lakhvinder Singh Lakha is in jail for 27 years. Shmeshwar Singh is in jail for 27 years. Paramjeet Singh Pyora is in jail for 25 years. Jagtar Singh Tara is in jail for 27 years. Gurmeet Singh is in jail for 27 years. And sir, last, the SGPC, Shromani Gurdwara Prabandhak Committee, is a statutory body whose elections have not been held for the last 12 years. I'll be grateful to you, Mr. Speaker, sir, and the Union Home Minister, if about the prisoners and the Shromani Gurdwara Committee's problems are urgently dealt with. Thank you. श्रीमती सुमन लता अमरीश। Thank you, sir. Sir, NH 275, the expressway between Bangalore and Mysore, is a dream project conceived by the Honorable Prime Minister himself and under Shri Nitin Gadkari ji's able guidance, is aimed to reduce the commute time between Bangalore and Mysore and passes maximum stretch through my constituency.
However, the recent unprecedented heavy rainfalls in Karnataka and my constituency of Mandya and surrounding districts have exposed the severe shortcomings and the unscientific methods approach adopted by the NHAI without taking into concurrence the specifications laid down by the irrigation department regarding stormwater drainage, etc., which has resulted in thousands of hectares of farmland being submerged, loss and damage to lives, agriculture, and also severe problems faced by farmers in my region, sir, due to lack of proper underpasses, exits and entries which existed earlier have now been disregarded totally, and local concerns have not been taken into consideration by the NHAI. And the poor quality of the service roads make it impossible for farmers on bullock carts with heavy goods being transported to navigate these roads, and also causing a lot of problems to school children trying to cross during the rains in these waterlogged underpasses. Okay. Sir, I request the government through you to urgently intervene in this matter and take a review of the existing DPR and provide effective solutions to access roads and drainages and crossings, etc., with the proper public consultation mechanism in place. Sunil Kumar Mandal. Sir. Sir, পশ্চিমবঙ্গের 38 বর্ধমান পূর্বের আমি সাংসদ। আমার সাংসদ এলাকা পুরোপুরি কৃষি ভিত্তিক, এখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই। স্যার, ইন্ডাস্ট্রি কৃষি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যে কৃষি সাচ্চাই যোজনা, সেই কৃষি সাচ্চাই যোজনার জন্য আমাদের কৃষিমন্ত্রী আমাদের কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, এবং তার জন্য কৃষি সাচ্চাই যোজনার জন্য যে প্রপোজালগুলো দেওয়া হয়েছে, আশা করি সেই প্রপোজালগুলোকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং জলশক্তি মন্ত্রী আপনার মাধ্যমে তাদের কাছে অনুরোধ করছি যাতে আমার এখানে কৃষি সাচ্চাই যোজনার সার্থকতা হয়। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पत्रकारिता और जनसंचार वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न संस्थानों से लगभग 50,000 से अधिक विद्यार्थी पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में पत्रकारिता के विद्यार्थी पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन जैसे क्षेत्र में जाकर बेहतर काम करते हैं। सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि यूपीएससी में पत्रकारिता के विषय में को शामिल किया जाए। यह विषय सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने वाला विषय है। यदि यूपीएससी में पत्रकारिता और जनसंचार को शामिल किया जाएगा तो बड़ी संख्या में पत्रकारिता और जनसंचार के लोग बेहतर समन्वय का काम कर सकेंगे। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र विकास का खाका खींचने, उसे अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए सदन के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पत्रकारिता और जनसंचार जैसे महत्वपूर्ण विषय को यूपीएससी की परीक्षा में शामिल किया जाए, ताकि पत्रकारिता से जुड़े युवा भी यूपीएससी में अपना किस्मत आजमा सकें। देश भर में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे संचालित किए जाते हैं, जिनमें करोड़ों कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ग्रामीण सीजनल कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित ये उद्योग कोरोना काल तथा कोयले की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण पहले से संकट से गुजर रहा है तथा बंदी के कगार पर है। जीएसटी की दरें बढ़ा दिए जाने से इस उद्योग पर संकट और भी अधिक गहरा गया है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्टों में निर्मित लाल ईंटों पर कर की दर बिना आईटीसी क्लेम के 1% से बढ़ाकर 6% तक तथा आईटीसी क्लेम करने पर 5% से बढ़ाकर 12% 1 अप्रैल 2022 से कर दी गई है। इतना ही नहीं, निर्माण क्षेत्र के 40 लाख रुपए तक वार्षिक टर्नओवर व्यवसाय जीएसटी में कर मुक्त हैं, परंतु ईंट निर्माताओं के लिए कुछ राज्यों में 20 लाख तथा कुछ राज्यों में 10 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर को कर मुक्त किया गया है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करने वाले तथा निर्माण के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाने वाली ईंट को बनाने वाले भट्टों को बचाने के लिए जीएसटी की पुरानी दरों को लागू करने तथा ईंट निर्माताओं के लिए भी निर्माण क्षेत्र की भांति 40 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर को करमुक्त करने का कष्ट करें। श्री एस ज्ञानाथीरा विनियम। நாகர்கோயிலிருந்து மும்பைக்கும் மும்பையிலிருந்து நாகர்கோயிலுக்கும் இயக்கப்படும் ட்ரெயின் நம்பர் 1639 மற்றும் 16340
ஆகிய ரயில்கள் வாரம் 4 முறையிலிருந்து 5 முறையும், அதேபோல் கன்னியாகுமரி நிஜாமுதீன் வாரம் 2 முறை இயக்கப்படும் திருக்குறள் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் நம்பர் 12641 மற்றும் 12640 குறைந்தது வாரத்திற்கு 4 முறையாவது இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். ட்ரெயின் நம்பர் 22671 மற்றும் 22672 சென்னையில் இருந்து மதுரை வரை இயக்கப்படும் தேஜாஸ் ரயிலை திருநெல்வேலி வரை நீட்டிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். திருநெல்வேலியிலிருந்து பாலக்காடு வரை செல்லும் ட்ரெயின் நம்பர் 16791 மற்றும் 16792 ஆகிய ரயில்களை கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு முன் எனது பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கீழக்கடையம் மற்றும் பாவூர் சத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் நின்று சென்றது. தற்போது நிற்காமல் செல்கிறது. எனவே மேற்கண்ட இரு ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். நாகர்கோயிலிருந்து பனகுடி, வள்ளியூர் மற்றும் நான்கேரி மார்க்கமாக இயக்கப்படும் ரயில்கள் அனைத்திற்கும் மேற்கண்ட நிலையங்களில் நிறுத்த ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री B.Y. Raghavinder. Sir, thank you for allowing me to request the Union Government to denotify the forest land cultivated by the thousands of families who were displaced during the Sharavati hydropower project and to them. Sir, displaced families were just asked to cultivate the forest lands in 31 different forest areas in the Malnad region in Shimoga district. Major farmers belongs to Idga community and other backward and SC/ST community suffering from this, sir. But the names of farmers are not entered in the revenue record since 1959. Before existing Forest Conservation Act 1980, it was to be done and the land could be notified, but it was not done due to the gross negligence of the government. As a result, these farmers are not getting any benefit from PM Kisan Yojana or any schemes of the government. Therefore, now the Union Government may please sort a detailed proposal from the Government of Karnataka and take appropriate measures to denotify, ensure the land rights and save livelihoods of those farmers. My humble submission to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is the champion transforming India, taking every step to ensure a happy and safe life for the 139 crores of people, and also the Honorable Minister for Environment and Forest, is to take immediate steps to issue denotification to grant forest lands and displaced families of Sharavati Hydro. अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। आज देश के किसानों के सामने संकट, खाद का संकट आके खड़ा हो गया है और मुझे लग रहा है कि बिहार के साथ साथ कई प्रदेशों में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ, कई जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। महोदय, रबी फसल का मौसम है। इस मौसम में अत्यधिक यूरिया, डीएपी और पोटास की आवश्यकता होती है और हमारी उत्पादकता भी इसी पे निर्भर करती है। अतः खाद की कमी से देश के किसानों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गया है। महोदय, मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं। अभी रबी का सीजन है, 4 दिन से सर लगे हुए एक आप तो मांग कर दो केवल। मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के साथ साथ कोसी सीमांचल के इलाके में मक्के का खेती होता है और शेष बिहार में गेहूं की खेती होती है, केला की खेती होती है। और जब फसल लग जाता है तो 20 से 25 दिन के बाद, पटवन के बाद, उसमें यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। आज भयावह स्थिति है, यूरिया नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप प्रत्येक दिन टीवी चैनलों पे आप देखेंगे तो सिर्फ सप्लीमेंट्री ग्रांट में 2 लाख कतार में खड़े हैं। इसीलिए बिहार को यूरिया पर्याप्त मात्रा में जो उसका कोटा है 100% उपलब्ध करा दिया जाए। हमारे किसानों को यूरिया के लिए अभी लंबी लंबी कतारें लगी, डॉक्टर महेश शर्मा, फसल बर्बाद हो रहा है। इसलिए आपसे विनती है डॉक्टर महेश शर्मा मंत्री जी से, हम बिहार को खाद उपलब्ध करा दिया जाए। धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से मेरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में जो करोड़ों लोग आशियाने की तलाश में उन्होंने बिल्डर बायर समस्या के जाल में फंस गए हैं और आज स्थिति ये हो गई है कि मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन की कमाई वहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। 25% बिल्डर जेल जा चुके हैं या जेल जाने की कगार में हैं। लेकिन उन बायरों की समस्या, आज वो बैंक का ब्याज भी दे रहे हैं और घर का किराया भी दे रहे हैं। उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। रेरा का गठन सरकार ने किया है, लेकिन उसके माध्यम से भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत सारे परिवार बहुत पीड़ित हैं। सरकार उस विषय में कोई उचित कार्रवाई कर उन बायरों को बचाए, उनके हितों का संरक्षण करे। मैं आपके माध्यम से ये सरकार के सामने पक्ष रखना चाहता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कल माननीय सदस्यों को मौका देने का प्रयास किया जाएगा। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 22 दिसंबर 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।